बीच में बीच में एक चक्कर लगा लीजिएगा 10 मिनट पहले। उसको अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? Can you hear me? Just raise your hand to show that you can hear me. Okay. All of you can look at your screen. Today we are going to start the essay. The essay that is going to be included in your next exams. This is television. The essay is about television. Find out the page number 75 of your English workbook, English B workbook, grammar and composition. I think all of you have got the page. Okay. Television is one medium of the 20th century. All of you must know what's television. Television is a basic invention of science. Before television, it was not possible to see the live pictures. Only the pictures could be taken and the voice could be recorded. Shawal, camera band kare. And voices could be recorded in the gramophone by Edison. तो उस वक्त बिफोर टेलीविजन सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड की जाती थी और वो सुनी जाती थी और पिक्चर्स लेना पॉसिबल हुआ। ईमान, काशिफ, कैमरा बंद करें। ईमान, कैमरा बंद करें। लेकिन उसके बाद जब टेलीविजन की इन्वेंशन हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज पॉसिबल टू see the live pictures, and it was a great invention of the science because people were able to see the recorded things, recorded movies. They were able to see the live pictures, moving pictures on the screen, and it was a great invention of that time. अब इसमें आपने ऐसे में सबसे पहले जो हेडिंग है, you will have to write the headings. You will have to give the headings with marker, round tip marker, and in the center of the page, leaving 1 inch gap from both the sides. जिस तरह आप उर्दू के पेपर में कोटेशंस लिखते हैं उर्दू के ऐसे में, इसी तरह यहाँ पे भी जो आपको कोटेशंस गिवन है, you will mention them in the same way as you write in Urdu paper. Television is one medium of the 20th century. Television 20वीं सदी का 20th century का एक मीडियम है, एक 20th century की इन्वेंशन है। ईमान आसिफ और ईमान काशिफ, मैं रिमूव कर दूं आपको? Television is one of the greatest wonders of modern science. Television modern science के greatest wonders में से एक है। Modern science has invented many valuable things.
मॉडर्न साइंस, जदीद साइंस। जदीद साइंस ने इन्वेंटेड, इजाद की है। Take pencil or pen in your hand so that you may note down the meanings. Modern science has invented, modern science ने इजाद की है many valuable things. कई valuable, valuable mean कीमती, कई कीमती चीजें, कई precious चीजें. But there is nothing, लेकिन कोई ऐसी नहीं है which has contributed, जिसने contribute किया हो. Contributed means added. लेकिन कोई 20th सेंचुरी में बहुत से इन्वेंशन, इट वाज द सेंचुरी ऑफ इन्वेंशंस, बहुत सी न्यू चीजें इन्वेंट की थी, लेकिन उन सारी इन्वेंशंस में कोई भी इतनी प्रेशियस, इतनी वैल्यूएबल नहीं है जितना प्रेशियस टेलीविजन की इन्वेंशन है. There is nothing which has contributed, added. लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है जिसने ऐड किया है, इजाफा किया है to our joy of life, हमारी जिंदगी की खुशियों में, एज द टेलीविजन, जितना के टेलीविजन ने, यानी टेलीविजन ने जितना हमें एंटरटेन किया है, जितना टेलीविजन हमें एंटरटेन करता है, इतनी ज़्यादा हमें एंटरटेनमेंट और कोई भी इन्वेंशन प्रोवाइड नहीं करती. इंडीड, बेशक, इट इज अ मैजिक बॉक्स, ये एक मैजिक बॉक्स है, जादुई डब्बा. क्योंकि बिकॉज जब पहले लोगों के पास रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब एकदम से टेलीविजन इन्वेंट हुआ तो उन्हें लगा इट्स अ मैजिक बॉक्स. उस वक्त तक तो लोग जो थिएटर, दे यूज्ड टू एंटरटेन थ्रू थिएटर, दे वर एंटरटेन थ्रू थिएटर्स, जिसमें लोग खुद से लाइव एक्ट करते थे और वो उसको ऑब्जर्व करते थे. लेकिन उसके बाद जब टेलीविजन की इन्वेंशन हुई तो शुरू में लोगों को लगा कि ये एक मैजिक बॉक्स है जिसमें शायद किसी मैजिक के थ्रू लोग नजर आते हैं और वो एक्ट करते हैं, बोलते हैं, हमसे बातें करते हैं. लेकिन in fact it wasn't a magic box, it was the invention of science that was made possible through the waves. Pictures and images flick across the screen. Pictures, tasawir, and images also are the pictures and images flick across, लहराना, flick across, लहराती हैं, across the screen पर. Pictures and images flick across the screen. Pictures स्क्रीन पर लहराती हैं एंड डिलाइट द व्यूअर्स, और देखने वालों को खुशी देती हैं. डिलाइट मीन खुश करना, गिव हैप्पीनेस. द व्यूअर, देखने वाले, नाजरीन. व्यूअर, देखने वाले, नाजरीन. The government of Pakistan, now come to the second paragraph. The government of Pakistan established the television corporation. पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर जो टेलीविजन कॉरपोरेशन कायम हुई, established, कायम की गई इन अक्टूबर 1964. अक्टूबर 1964 में पाकिस्तान में टेलीविजन कॉरपोरेशन कायम की गई. इट्स एम वॉज, इसका मकसद था, क्या मकसद था? टू इंट्रोड्यूस अ जनरल पर्पस ऑफ टेलीविजन सर्विस इन द कंट्री. अब इस टेलीविजन कॉरपोरेशन का क्या मकसद था जो 1964 में इस्टेब्लिश की गई, कायम की गई? उसका मकसद था जनरल पर्पस, आम मकसद. सफान, Its aim was to introduce, इसका मकसद था to introduce a general purpose of television service in the country, यानी लोगों को मुतारफ करवाना. Introduce, मुतारफ करवाना, तारुफ करवाना, उनको बताना कि टेलीविजन सर्विस का, टेलीविजन का क्या फ़ायदा होगा इन द कंट्री, हमारे मुल्क में. यानी लोग किसको कोई गलत चीज़ ना समझें, पहले उनके माइंड्स को प्रिपेयर करना था कि इसका फ़ायदा क्या है हमारे मुल्क में. जनरल पर्पस ऑफ टेलीविजन सर्विस इन द कंट्री मीन कि
लोगों को ये बताया जाए कि टेलीविजन का फायदा क्या होगा लोगों को, ना सिर्फ ये उनको एंटरटेन करेगा बल्कि मालूमात देगा, न्यूज़ पहुंचाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को। यानी लोगों को टेलीविजन की अफादियत बताना था, फायदे बताना था। तो फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन इन आवर कंट्री। अब फिर उसके बाद टेलीविजन स्टेशन कायम किया गया। टेलीविजन स्टेशन क्या था? द फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में पहला टेलीविजन स्टेशन वॉज सेटअप, सेटअप मीन कायम किया गया, एट लाहौर, लाहौर में। टेलीविजन स्टेशन क्या था कि जिसके थ्रू हमने टेलीविजन के स्टेशन के थ्रू टीवी पर प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाने थे। यानी पीटीवी का जो पहला स्टेशन था वो लाहौर में कायम हुआ, जिसके थ्रू पाकिस्तान ने अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट करना शुरू किया। Now we have television stations at Quetta, Peshawar, Islamabad and Karachi. Now we have television stations. अब हमारे पास television stations हैं at Quetta, Peshawar, Islamabad and Karachi. ये पीटीवी पे अगर आप देखें तो ये पीटीवी के स्टेशंस हैं, लाहौर, कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद एंड पेशावर. We can watch moving, talking and living pictures on the screen. हम स्क्रीन पर देख सकते हैं मूविंग, मूव करते हुए, टॉकिंग, टॉकिंग करते हुए, बातें करते हुए, यानी हरकत करती हुई, बातें करती हुई पिक्चर्स देख सकते हैं, एंड लिविंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, यानी हम स्क्रीन पर लाइव पिक्चर्स देख सकते हैं. We need not go to playground. हमें प्लेग्राउंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती टू एंजॉय अ मैच, एक मैच को एंजॉय करने के लिए. यानी अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है कोई भी, तो हमें उसको देखने के लिए, लाइव देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जाएं, बल्कि हम उसको घर बैठे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. We can enjoy it in our drawing room along with our family. Now we sitting in our drawing rooms along with our family. अपनी फैमिली के साथ हम अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने टीवी लाउंज में बैठकर हम किसी भी मैच को एंजॉय कर सकते हैं, और हमें बिल्कुल वही फीलिंग होती है कि हम जैसे उस जगह पर, उस स्टेडियम में लाइव बैठ के वो देख रहे हैं, मतलब हम उसका एक एक सीन एंजॉय कर रहे होते हैं. Before television this was not possible. लेकिन अब हम कहीं पे भी कोई कॉन्सर्ट है, कोई शो है, अगर उसकी लाइव कवरेज है तो हम उसको लाइव देख सकते हैं. This is all possible, have become possible due to the television. तो टेलीविजन इस तरीके से एक ऐसी इन्वेंशन है जिसने हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा की हैं, और इसने हमें एंटरटेनमेंट में हमें एक नई राह दी. Now, after two paragraphs, again there is a quotation. You will write it in the center of the page, leaving one line from both. 1 inch margin from both sides. Abdul Noman, camera बंद करें. Television is the chewing gum for the eyes. Television is the chewing gum for the eyes. यानी chewing gum क्या है? एक एक्सरसाइज है. Chewing gum, when you chew, you have some exercise and you have some refreshment. So television is the chewing gum for the eyes, means it's a refreshment, it's an exercise for the eyes. It pleases you, it pleases your eyes, it gives you pleasant sights. आँखों कुछ देर के लिए खुशी देती है, एंटरटेन करती है, and you feel joy. Television is an important means of entertainment. Television is an important means. Important means अहम जरिया, means mean जरिया. Television is an important means of entertainment. Television तफरीह का अहम जरिया है.
एजुकेशन तालीम का, कम्युनिकेशन राबते का, इंफॉर्मेशन मालूमात, कार्टून्स, क्विज प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। यानी टेलीविज़न तफरीह, तालीम, राबते, मालूमात, कार्टून, क्विज प्रोग्राम्स वगैरह का एक अहम जरिया है। इंडीड, इंडीड बेशक, इंडीड बेशक या दरअसल। ईमाना से कैमरा बंद करें। इंडीड मैनकाइंड शुड बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मीन शुक्रगुजार। GREAT ग्रेट होता है बड़ा, अजीम, बट GRATE ग्रेट होता है ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, thankful. Indeed, mankind should be grateful to jailbird. दरअसल या इंसानियत को, मैनकाइंड मीन सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि तमाम इंसानों को, तमाम इंसानियत को शुड बी ग्रेटफुल टू जेलबर्ड, जेलबर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन, जो टेलीविजन का इन्वेंटर था। इन्वेंटर मीन मौजिद, इजाद करने वाला। यानी तमाम इंसानों को जेलबर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने टेलीविजन इजाद किया। बिकॉज टेलीविजन की वजह से हम लोगों की जिंदगी में एक बड़ा चेंज आया। टेलीविजन ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन आवर लाइव्स। Television has almost replaced cinema house and theater. Television has almost replaced, replaced mean जगह लेनी है, यानी तब्दील करना, किसी को चेंज करना, किसी की जगह ले लेना। टेलीविजन ने जगह ले ली है किसकी? सिनेमा हाउस एंड थिएटर की, सिनेमा हाउस और थिएटर की। बिकॉज टेलीविजन की इन्वेंशन से पहले लोग एंटरटेनमेंट के लिए, आयशा नासिर वीडियो ऑफ करें। टेलीविजन की इन्वेंशन से पहले लोग सिनेमा हाउस और थिएटर जाया करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे बिकॉज लोग स्टेज प्ले होते थे जो लोग खुद प्ले करते थे लाइव, और वो वहाँ पे जाके लोग थिएटर देखते थे। लेकिन टेलीविजन के बाद उनको थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं रहती थी, क्योंकि वो घर बैठे ही इंजॉय कर लेते थे। उसमें कॉस्ट भी कम होती थी और आसानी भी ये थी कि कहीं बाहर आना जाना नहीं पड़ता था। There are short and long plays. अब टेलीविजन पे क्या क्या टेलीकास्ट होता था? शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लेज, शॉर्ट प्लेज भी और लॉन्ग प्लेज भी, यानी ड्रामा सीरियल्स भी और टेलीफिल्म्स भी। म्यूजिक प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम भी टेलीकास्ट होते हैं, इंक्लूडिंग सॉन्ग्स एंड इंटरव्यूज एंड कॉमेडी स्किट्स। और कॉमेडी स्किट्स मीन मजाहिया खाके, जो छोटे छोटे मजाहिया प्रोग्राम, मजाहिया खाके होते हैं, वो भी टेलीविजन पे नशर किए जाते हैं। दे ऑल एंटरटेन व्यूअर्स, वो सब एंटरटेन मीन तफरीह फ्राहम करते हैं। दे ऑल एंटरटेन, वो सब तफरीह फ्राहम करते हैं टू व्यूअर्स, व्यूअर्स मीन नाजरीन, देखने वाले, वो सब व्यूअर्स को, देखने वालों को, नाजरीन को तफरीह मुहैया करते हैं। एंड रिलीव देम, और कम करते हैं, रिलीव देम कम करते हैं, ऑफ द वरीज ऑफ एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी की परेशानियों को, यानी उनकी रोजमर्रा जिंदगी की परेशानियों को कुछ देर के लिए कम कर देते हैं। यानी क्या होता है कि जब आप टेलीविजन के आगे शाम को थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो यू रिफ्रेश योर माइंड, इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, कि आपके जहन से तमाम टेंशन्स निकल जाती हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने जहन को रिलैक्स करते हैं बाय वॉचिंग द प्रोग्राम ऑफ योर ओन चॉइस, अपनी चॉइस का प्रोग्राम आप थोड़ी देर के लिए कोई भी उस पर देखते हैं और रिलैक्स करते हैं। एंड आफ्टर दैट यू फील रिफ्रेश, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है।
और आप अगले टास्क के लिए, किसी और नए काम के लिए रेडी हो जाते हैं। Now again there is a quotation which you have to write with the marker, round tip marker, and in the center of the page leaving 1 inch gap from both sides. टेलीविजन इज बेसिकली टीचिंग। टेलीविजन बुनियादी तौर पर सिखाता है, यानी आपको तालीम देता है, आपको कुछ सिखाता है, वेदर यू वांट इट और नॉट। हाँ, वेदर यू वांट इट और नॉट, चाहे आप उसे मतलब हाँ आप उसे सीखना चाहें या ना, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आपको टीच कर रहा होता है। व्हाट डज इट मीन कि जब भी आप कोई प्रोग्राम देखते हैं तो जो भी प्रोग्राम आप देखते हो इट हैज एन इफेक्ट ऑन योर माइंड। नूर फातिमा कैमरा बंद करें, वीडियो ऑफ करें बेटा। इट हैज अ डीप इफेक्ट ऑन योर माइंड। जो भी चीज़ आप देखते हो, अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हो तो इनका आपके माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट होगा, और अगर आप कोई अननेसेसरी चीज देख रहे हो, कोई हॉरर या क्राइम से रेलेवेंट प्रोग्राम देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, कोई क्राइम शो देख रहे हो, तो उसका इफेक्ट आपके उसके मुताबिक आपके माइंड पे होगा। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर टेलीविजन हमें एक टीचिंग करता है अनकॉन्शियसली, वेदर यू वांट इट और नॉट। हम चाहें या ना चाहें, अनकॉन्शियसली टेलीविजन हमें सिखाता है। जिस तरह के हम प्रोग्राम देखते हैं वो प्रोग्राम्स हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। अगर हम कोई लिटरेचर से रेलेवेंट प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो हमारे हमें लिटरेचर सिखा रहा है, वो मतलब हमारे लिटरेचर की मालूमात में इजाफा कर रहा है। मतलब अदब के प्रोग्राम देख रहे हैं, लिटरेचर से रेलेवेंट देख रहे हैं, तो वो हमारी अदबी मालूमात में इजाफा कर रहा है। और अगर हम कोई गेम शो देख रहे हैं तो हमें गेम के टैक्स पता चल रहे हैं। और अगर हम कोई क्विज प्रोग्राम देख रहे हैं तो नेचुरली इट्स एडिंग टू आवर इंफॉर्मेशन, हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। तो जिस टाइप का भी हम प्रोग्राम देखते हैं it has a deep effect on our mind. Television is playing, next paragraph, television is playing an important role in the field of education. Television अहम किरदार, playing an important role, अहम किरदार अदा कर रहा है। रोल मीन किरदार, प्ले कर रहा है, अदा कर रहा है। टेलीविजन एक अहम किरदार अदा कर रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम के मैदान में। फील्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम के मैदान में। किस तरह से तालीम के मैदान में ये अपना किरदार अदा कर रहा है, तालीम के मैदान में कैसे हेल्प करता है? इट टेलीकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये तालीमी प्रोग्राम्स नशर करता है। टेलीकास्ट मीन नशर करता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स तालीमी प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। बेनिफिट, फायदा, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के फायदे के लिए। अब इसमें आजकल जैसे हम लॉकडाउन में हैं तो हम टेलीविजन पे, हम जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी कुछ प्रोग्राम्स एक चैनल के थ्रू टेलीकास्ट करेंगे, जिसमें के जरिए तमाम तलबा को एजुकेट किया जाएगा, घर बैठे उनको लेक्चर्स दिए जाएंगे। डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स कॉन्स्टेंटली कीप अस, डिफरेंट मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, खबरों के चैनल्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल, परमानेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन मुस्तकिल तौर पर या परमानेंटली, कीप अस इन टच, कीप अस इन टच हमें राब्ते में रखते हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हमें राब्ते में रखते हैं विद द लेटेस्ट न्यूज़ राउंड द ग्लोब। लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा तरीन खबरों से, जदीद खबरें, ताज़ा तरीन खबरें, राउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया की। यानी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हमें राब्ते में रखते हैं दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़ से।
यानी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, हम घर बैठे हमें टेलीविजन पे खबरें फौरन मिलती जाती हैं. Nowadays, when we are watching TV, cable has provided us so many channels, and we are able to watch different channels of the world. और वो different channels हमें तमाम दुनिया की खबरें, राउंड द ग्लोब मीन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तमाम हमें लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी हैपनिंग हो, इम्पॉर्टेंट हैपनिंग है, कहीं कोई जलजला आया, कहीं फ्लड है, कहीं कोई और वाक़या हुआ है, किसी एमिनेंट पर्सनालिटी की डेथ हो गई है, या कोई भी मामला है, कोई हर चीज़ के बारे में हमें लाइव अपडेट्स मिलती हैं थ्रू द टेलीविजन, थ्रू द न्यूज़ चैनल. केबल हैज़ फैसिलिटेटेड अस, केबल ने हमें सहूलत दी है. फैसिलिटेट करना, सहूलत देना, फैसिलिटेट सहूलत देना. विथ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैनल्स, मुख्तलिफ किस्म के कई चैनल्स की केबल के जरिए. पहले तो हमारे पास in our childhood we had only few channels. PTV, we were able to watch only PTV, Pakistan television स्टेशन. उससे जो टेलीकास्ट होता था वो हम सिर्फ देख पाते थे, या फिर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की टेलीकास्ट देख सकते थे. लेकिन फिर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स आई और केबल के थ्रू, डिश एंटीना और केबल के थ्रू ये पॉसिबल हुआ कि हम मुख्तलिफ ममालिक के चैनल्स को भी देखने के काबिल हुए. और अब तो हम अपने घर में केबल के थ्रू बहुत से चैनल्स देख सकते हैं. Now we can enjoy films, dramas, cartoons, etc. अब हम फिल्म, ड्रामे, कार्टून सब कुछ अपनी पसंद का कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं while sitting in our own house among the members of the family. अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के हम अपनी चॉइस का कोई भी प्रोग्राम दिन के किसी भी हिस्से में देख सकते हैं. We can watch and hear, हम we can watch, हम देख सकते हैं. Watch mean देखना, hear सुनना. We can watch and hear, हम देख और सुन सकते हैं. The talks delivered by the scholars, talks गुफ्तगू, हम देख और सुन सकते हैं गुफ्तगू को by the scholars, उलमा की, scientists, साइंसदानों की, politicians, सियासतदान. Note down the meaning, students. Watch and hear, watch देखना, hear सुनना. The talks गुफ्तगू delivered by the scholars, उलमा की, आलिम के जमा उलमा, scientist साइंसदान, politician सियासतदान, poet शायर, writers अदीब, artist फनकार, writer अदीब, artist फनकार, musician मौसीकार, and other eminent persons. Eminent mean important, नुमाया, brilliant persons, जो किसी भी फील्ड में कारहाय नुमाया सरंजाम देते हैं, अहम शख्सियात. यानी हम अहम मुख्तलिफ शख्सियात के जो टॉक शोज होते हैं वो हम अपने घर बैठे उनकी गुफ्तगू को सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी. Although we can watch many different channels, अगरचे हम कई मुख्तलिफ चैनल्स देख सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय केबल कंपनीज, केबल कंपनीज के थ्रू. अगरचे हम कई मुख्तलिफ चैनल्स देख सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय केबल कंपनीज के थ्रू. येट सम चैनल्स शो, लेकिन कुछ चैनल्स शो मीन दिखाते हैं, कुछ चैनल्स दिखाते हैं, टेलीकास्ट करते हैं सबस्टैंडर्ड गैर मयारी, सबस्टैंडर्ड गैर मयारी एंड वल्गर प्रोग्राम्स, और बेहुदा. अबू बकर वीडियो ऑफ करें. Yet some channels show substandard and vulgar programs, लेकिन कुछ चैनल्स गैर मयारी और बेहुदा प्रोग्राम्स भी दिखाते हैं. They leave bad impression, वो गलत असर, बुरा असर डालते हैं. Bad impression, बुरा असर, on the mind of the viewer, देखने वालों के जहन पर.
वो देखने वालों के जहन पर गलत असर डालते हैं। पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली खास तौर पर, बिलखसूस बच्चों, वो देखने वालों बिलखसूस बच्चों के जहनों पर बुरा असर डालते हैं। क्यों बच्चों के जहन? बिकॉज बच्चों को तो इतनी अकल नहीं होती। बड़े अगर कोई प्रोग्राम देखते हैं जो एक अच्छा लेसन नहीं भी दे रहा, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं और उनको पता है कि ये गलत है। लेकिन बच्चे, चूंकि उनके जहन नापुख्ता होते हैं, जैसे आप लोग हो छोटे, तो आप लोग अगर कोई ऐसी चीज देखते हो तो आप उसका असर फौरन लेते हो। आप, बिकॉज आपको अभी अच्छे और बुरे में इतनी डिस्टिंक्शन का, डिफरेंस का इतना पता नहीं होता, और छोटे बच्चे जल्दी से किसी भी चीज का असर ले लेते हैं। There are a great number of people who spend most of their time in watching television. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, who spend, जो गुजारते हैं, most of their time, अपना ज्यादातर वक्त in watching television, टेलीविजन देखने में। The habit of watching television for long, ज्यादा देर तक, हैबिट आदत, ज्यादा देर तक टेलीविजन देखने की आदत इज हार्मफुल टू आई साइट, नजर के लिए नुकसानदेह है। आई साइट मीन नजर, हार्मफुल नुकसानदेह। एंड मेक्स अ पर्सन लिथार्जिक, लिथार्जिक मीन लेजी, LAZY, लेजी, सुस्त, काहिल। और ये इंसान को काहिल बना देती, यानी वो उठ के कोई काम नहीं कर रहा, खेल कूद नहीं कर रहा, वो टीवी के आगे बैठा रहता है। टेलीविजन इज अ वेरी यूजफुल इन्वेंशन, टेलीविजन एक बहुत मुफीद इन्वेंशन है, इजाद है। यूजफुल, मुफीद, इन्वेंशन, इजाद। इट कैन रेंडर, रेंडर मीन प्रोवाइड, गिव, इट कैन रेंडर, ये मुहैया करती है, अ ग्रेट सर्विस, बड़ी खिदमत, ये एक अजीम खिदमत कर रही है, टू पब्लिक, कर सकती है, टू पब्लिक, अवाम की, लोगों की। इफ यूज, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, सिंसियरली एंड पॉजिटिवली, यानी अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों की, आम लोगों की लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है और उनको बहुत फायदा दे सकती है। नाउ योर essay is complete. Any question regarding? Yes, beta. Anyone who want to ask some question?